Good afternoon, everyone. So, I welcome all to the session, and here we will welcome Mr. Khuzwan Fatnani to deliver a lecture on finding the path ahead. So, I welcome Khuzwan from the behalf of the Parol University and the Department of Chemical Engineering. So, he will be delivering a lecture on the career path, and actually, he is a good motivator. Actually, so he will motivate us how to choose a career path and how to move ahead in future. So, Khusbant, you can start now. Thank you. Thank you, Manish, for such a warm welcome. And guys, I'm just a faculty. I work as a lecturer and I teach students. I help them prepare for JEE and NEET. And about motivating thing, I don't know that much. If you feel motivated, I'd be really happy, and it would be a pleasure at my end if this, what I'm going to present today, can add some value to your decision making process. So I'll try my best. I'll begin with this. So here is something which I have always believed in, that while it is wise to learn from your own experiences, it is always a wiser attempt to learn from the experiences of others. So here on the screen, I'll be sharing with all of you some of the things which I have learned across my path. I'll share with you my journey, and if there is anything that you can take away from it, I'll be more than happy. Also, at the end of the session, if there are any queries at the end of any one of you, I am there. So just shoot them once we are done with this presentation. So let's begin. Okay, so this is one thing I always believe in. As a student, I have always had the habit of making notes. So when you write something, it goes into that part of your brain which registers the important things. So जब भी कभी कुछ लिखो, आप जब भी कभी कुछ अच्छा सुनो तो उसे लिखो जरूर, है ना? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ आई एम स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. तो अगर आप लोगों के पास कोई कॉपीज हैं, कोई पेन्स हैं, तो उसे रेडी रखो, सो दैट इफ देयर इज एनीथिंग गुड एंड नोटवर्दी आप उसे लिख सको. सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद दैट. लेट अस स्टार्ट. Okay, so my name is Khushwant Fatnani, as Manish just introduced. I work as an educator. I help students study and prepare for JEE and NEET examinations. I help them with the physics part of it. And kyunki all of us have been through that journey, so you all will be able to connect very well to the scenario. Last year has been a very dynamic shift change year, 2020, when everything has grown in terms of technology, be it businesses, be it education, or career, right? So work from home. All of you probably might be sitting at your homes and attending the seminar. So this is again an effect of everything that has happened last year. So has it been with my career. I have been working with Akash Coaching Institute as a lecturer before this. Now, after this pandemic, I have shifted to an Institute of Medical and Engineering in my own city, Raipur. Plus, I'm also working with YouTube as an educator and Unacademy as a doubt-solving educator. So here is, okay, before I start off with anything, इसमें से इस ज्ञान का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे मैंने सीखा है कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंसान कुछ भी बचपन से सीख कर नहीं आता, सब यहाँ आने के बाद सीखता है. So I take no credit of anything that I'm going to present to you. It is these amazing people you can see on the picture. The first one is with my grandmother, my late grandmother, my grandfather, and here are my parents and my sister. So my great credits to everybody in my family for everything that I've learned till date. So with their name, with their memories, and with their smiles, let us start off the session. So here is a brief association with different institutes that I've got to be with, and of course, my credits to the experiences that I've had. So I am born and brought up in Raipur, Chhattisgarh. यहाँ से मेरी schooling education हुई है. आप लोगों की तरह ही मैंने भी JEE और NEET की 11th और 12th के, मतलब उस समय तो मेंस हो रहा था, JEE मेंस और JEE एडवांस की एक बहुत ही तगड़ी तैयारी की. खूब मेहनत, खूब सारी मेहनत, लग भिड़ के एकदम वैसे एटीट्यूड के साथ कि जी जान लगा देना है वाला चीज, एंड जो होगा देखा जाएगा, राइट? तो इस तरह से आई गॉट टू वर्क विथ माय स्कूल के 11th 12th में बहुत जोरदार. गॉड के ग्रेस से आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ DIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर, and in my final year I had applied for different scholarships as well as I wanted to basically pursue masters, क्योंकि स्कूल के दौरान, मतलब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते
मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ना पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा आता है. टीचिंग इज समथिंग इन विच आई हैड थॉट आई एम गुड एट, क्योंकि मुझे पढ़ने में पढ़ाने में मजा आता था. और मेरे ना रूम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दोस्तों को भी ऐसे ही बताता हूँ, लाइन लगी रहती थी. मतलब एक आ रहा है पढ़ने के लिए, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है. सो ये जब होता था ना, आई कुड रिलेटेड टू द फैक्ट कि मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है और सामने वालों को पढ़ने में मजा आ रहा है. अगर ये है तो फिर टीचिंग इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ. तो अब वो टीचिंग मुझे कॉलेज लेवल पर एज अ प्रोफेसर करनी है या फिर ऑन सम अदर मोड करनी है, ये डिसाइड करने के लिए आई गेव टाइम टू माई सेल्फ. So I had applied for a research internship in my final year at college. So with the grace of God, I got to work with Nanyang Technological University. वहाँ पे मुझे एक full funding scholarship मिली थी in Singapore. So I visited that university. I worked there as a student and as a research assistant. Plus side by side, I did my project work for the final year. फिर I had applied for my masters, right? So I got admits from NUS, that is National University of Singapore, and University of Southern California in America. So once all of this was there, and also for a PhD in NTU. So my prof had offered this to me because my research work went very well with the grace of God. And this is how I had decided that I might go for higher education. But I was in the थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ना बचपन से मतलब खासकर जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक प्रण लिया हुआ था, एक प्रतिज्ञा थी कि पेरेंट्स का पैसा ज्यादा यूज नहीं करना है. एक बार कॉलेज तक जब हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया था तो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब अगर आप अपनी एजुकेशन में एक अच्छा खासा सम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने अपनी एजुकेशन पे किया है, आप उसका कई गुना ज्यादा अपने आप को और अपने पेरेंट्स को वापस दे सको. ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है. तो मैंने उस दृष्टिकोण से आई थॉट कि अगर मैं आगे पढ़ाई करूंगा, मतलब वीआईटी के बाद, तो इट विल बी ओनली ऑन फंडिंग. मतलब सिंगापुर जाने का भी रीजन वही था कि मुझे सिंगापुर गवर्नमेंट ने फंड किया था because of my grades and with the grace of God I got to be the university topper in VIT. तो उसके वजह से मुझे सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग थी एंड VIT की ओर से भी फंडिंग थी. तो वही रीजन था आई डिड दैट वर्क like as a research associate in Singapore. वहां से लौटने के बाद NUS और University of Southern California में scholarship were not being offered that year for masters program. और PhD के लिए मुझे लगा शायद it's too early because मेरा research का aim clear नहीं था. तो therefore I decided कि I'll go ahead with IIT Gandhinagar. मुझे IIT Gandhinagar से भी on a special program called Early Admit MTech, क्योंकि ब्रांच टॉपर था तो उस वजह से आई गॉट माई एडमिट विदाउट गेट, मतलब बिना गेट के जरिए ही डायरेक्टली मुझे IIT गांधीनगर में एडमिट मिल गया था. एंड लेटर व्हेन आई गेव माई व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द गेट एग्जाम, वो भी मैंने क्लियर कर ली. तो इसीलिए गांधीनगर में आई वॉज अवॉर्डेड विद डायरेक्टर्स फेलोशिप, विच इज बेसिकली आपको हर महीने जब आप कॉलेज में होते हो ना तो आपको एक एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी मिलता है मास्टर्स करते हुए, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस पे ऑफ कर सको. तो इस वजह से मेरा कोइंसिडेंटली मास्टर्स पूरी तरह से फंड हो गया. तो मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी जिसकी मैंने आपसे बात की वो पूरी हो गई थी. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई डिड माई मास्टर्स, एंजॉयड रिसर्च वर्क और काफी सारे टीचिंग के एक्सपीरियंसेस वहां पे भी मिलते रहे. एंड देन ये भी मेरा एक एम था कि अगर मैं पढ़ूं कुछ तो उसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज कर सकूं. तो ये जैसा आपको दिख रहा है राइट साइड पर, मैंने HP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक मोनो यूज किया हुआ है. तो आई गॉट टू वर्क ऑन माई रिसर्च प्रोजेक्ट. एमटेक का जो प्रोजेक्ट था इट वॉज अबाउट, आप लोग क्योंकि काफी सारे लोग आप में से आई एम अज्यूमिंग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भावी केमिकल इंजीनियर्स हैं, तो आप समझ पाएंगे एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट यानी कि FCC. तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर मैंने काम किया था, यानी कि उसके पैरामीटर्स को आप कैसे और अच्छा बनाएं, उसको एक काफी प्यारा सा डिजाइन देने की हमने कोशिश किया था. मतलब उसके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे उसकी प्रोसेस डिजाइन में, ताकि वी कैन गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी आउट ऑफ इट. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्राई ऑब्जेक्टिव मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन. तो दिस इज व्हाट आई हैड यूज्ड इन माय वर्क. मेरा वर्क पूरी तरह से मैटलैब पर बेस्ड था. तो ये मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में किया था इन बैंगलोर. तो वहां पर भी मुझे एक पेड इंटर्नशिप मिली थी, मतलब आई वाज बीइंग पेड बाय द कंपनी फॉर बीइंग एन इंटर्न देयर. तो ये सारा कुछ हुआ. आई केम बैक टू IIT एंड IIT आने के बाद आई कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैंने हमेशा से टीचिंग का एक सपना देखा था और विद गॉड्स ग्रेस हुआ भी ये ही कि टीचिंग के इस करियर में आई गॉट selected with Akash Coaching Institute
एज अ कैंपस प्लेसी, तो कैंपस प्लेसमेंट में आई गॉट इनटू आकाश, वहां जैसा आपको बताया वर्क एंड देन एन अकेडमी और फिर यूट्यूब का आई जस्ट टोल्ड यू। तो ये एक बेसिक जर्नी के कुछ मेरे फीचर्स थे। अब मैं एक एक करके आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, एंड अगेन इसमें से जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नथिंग इज माइंड, एवरीथिंग हैज बीन लाइक आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माय मेंटर्स एंड माय टीचर्स। तो मेरा दिल से उनको नमस्कार है। आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम, एवरी पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू माय जर्नी। सो आई जस्ट प्रे देम विथ माय होल हार्ट राइट नाउ। सो आई बिलीव इन दिस कोट, दादाजी से हमेशा सीखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Let's begin. So here are some of the pictures from my like final year in VIT. With God's grace, I was awarded with the director's best student gold medal, which was awarded by TCS and VIT. And here on the right is my picture in 2017 when I graduated from VIT University, Vellore. Being awarded by Chancellor Sir, and on the left by the UGC Chairman of India then. Coming to my research internship at NTU Singapore, these are the pictures there. ये जो आपको शेर दिख रहा है, ये सिंगापुर का one of the most watched symbol है, आपको बहुत फेमस मिलेगा सिंगापुर में। ये मर लायन करके उसका नाम है, राइट? मतलब वो आधा मरमेड रहता है और आधा लायन रहता है, तो इसकी अपनी कहानी है सिंगापुर के कल्चर की। तो दिस इज द लायन पार्ट ऑफ इट, एंड ये मैं हूँ ऑन द राइट वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट देयर। एंड जैसा कि आपको बताया कि IIT में आई गॉट टू वर्क विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को आप कैसे कॉलेज में जो आपने चीजें सीखी है उनका यूटिलाइजेशन करके आप उस पर वर्क कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही प्यारा अमेलगमेशन प्रोजेक्ट था। गॉट टू वर्क ऑन इट एंड आई रियली फील ब्लेस्ड, ये एक्सपीरियंस मुझे करने को मिला। एंड ओके, सो कमिंग टू योर पॉइंट कि मैं यहाँ जिस पर्पज से हूँ, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना आई हैव ऑलवेज लर्न अ लॉट बाय रीडिंग। मैं बहुत एविड रीडर रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। आपको अभी मैं अगर अपना कैमरा शिफ्ट करूँ ना, तो मेरे सामने कबर्ड है बुक्स का। बुक्स मतलब सिर्फ करिकुलम नहीं, हर तरह की अलग अलग चीजें। तो आई लव रीडिंग, मैं बहुत पढ़ता हूँ। आई लव टू लिसन अ लॉट। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है कि जब आप इस फेज में होते हो ना, जब आपको कुछ सिलेक्ट करना होता है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऐसे टाइम पे हम अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं। अब दिमाग में जो हमारे क्लटर चल रहा होता है, जो कंफ्यूजन चल रहा होता है, हम सब कुछ आके बोल देते हैं। लेकिन आई बिलीव कि एक बेटर अप्रोच क्या होती है, बोलो, किसी एक कन्फाइड करो उस चीजों को, किसी को बताओ, बट एट द सेम टाइम सुनो। जितना आप सुनते हैं ना, जितना आप पढ़ते हैं, उतना आप सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीजें करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी करिकुलम की बुक्स अच्छे से पढ़ो। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसा पीपीटी है, फटाफट देख लिया, चलो एग्जाम पास करना है, चलो पढ़ लेते हैं। हम उस एटीट्यूड से काम करते हैं, चलो एक ही दिन में तो एग्जाम ही तो पास करना है। तो अब जब तुम एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, सोचो कि क्या ये जस्टिफाइड है। जब तुम एक बहुत बड़े लक्ष्य को एम करते हो कि मुझे PSU में इस जगह पर ये करना है, सपोज IAS ऑफिसर बनना है, सपोज TCS इन्फो, हनीवेल, UOP, किसी बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदे पर काम करना है, सुनो खुद सोचो, डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? अगर तुम सिर्फ एग्जाम की एक दिन की पढ़ाई में वहां तक पहुंचना चाहते हो, क्या उस करियर के साथ वो इंसाफ होगा कि एक ऐसा इंसान उसको पाले जो सिर्फ एक रात की मेहनत करके अपने एग्जाम्स पास करता है? The answer is an obvious no. एक मेहनती इंसान का वहां पहुंचना is a better justice than anybody reaching there, है ना? तो अपन को I believe उस काबिल बना लेना चाहिए जब भी समय मिले लाइफ में। तो कॉलेज लाइफ में बहुत टाइम होता है, 4 साल जिंदगी के। आई थिंक इट्स लाइक अ पेड वेकेशन, जहाँ आपके माँ बाप बस आपके लिए पेमेंट करते हैं, है ना? वो आपके लिए बैंक अकाउंट का काम करते हैं, आपको पैसे डालते जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, आपके ट्रैवल पे, आपके खाने पे, आपकी मूवीज पे, आपके हर एक छोटी छोटी चीजों पे पेरेंट्स को बस पैसा डालना होता है और आप वेकेशन में मजे करते हैं। करने चाहिए, बिकॉज यही तो पल है जो आगे याद आएंगे। बट एट द सेम टाइम अपने करियर पर के लिए अपने आप को काबिल बनाना इज आई थिंक अ वेरी वाइज चॉइस। तो उसके तरीके हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे आप करिकुलम, अपनी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर चाहे वो मास ट्रांसफर की हो, लेट्स से तुम्हारे सेंजल की बुक्स हो फॉर योर हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, नारायण जी की बुक हो, तो बहुत अच्छे से उन किताबों को स्टडी करना चाहिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है तो आई थिंक सेल्फ हेल्प बुक्स आर ग्रेट। बहुत सारी किताबें हैं जो आपको समझाती हैं कि आप
अपना इंटेंशन प्योर रखो, मेहनत करो, एंड यू विल सी हाउ द नेचर विल वर्क फॉर यू। जहाँ पे आसपास आपको दुनिया में कीचड़ मिलेगा बहुत सारा, काफी नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन उस नेगेटिविटी के बीच में रहते हुए फ्लरिश करना और एक कीचड़ के बीच में कमल की तरह खिल जाना ही तो लाइफ है। कहाँ आपको ऐसा कोई कंड्यूसिव माहौल कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है जहां आपको लगे हाँ अब सब अच्छा हो गया, अब आई कैन वर्क, ऐसा कभी नहीं होगा। देयर ऑलवेज बी सम रेजिस्टेंस, है ना। अब आप लोग इंजीनियर्स हो तो ये समझते हो कि रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट बहेगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट कैसे बनेगा ना। तो आई ओम्स लॉ की कंडीशन ये कहती है कि V इज इक्वल टू आई आर एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो रेजिस्टेंस। तो करंट होने के लिए, लाइफ में बहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रेजिस्टेंस तो जरूरी है। तो अच्छी बात है ना, ये किताबें आपको उस बात का कॉन्फिडेंस देती है कि होने दो रेजिस्टेंस, तुम अपने तरफ से आगे बढ़ो, है ना। तो आई थिंक वो चीजें करती रहनी चाहिए, दिमाग को फिल्टर करते हैं। जैसे अपन रोज नहाते हैं, है ना, रोज कचरा शरीर से निकालते हैं, है ना, तो उसी तरह से दिमागी कचरा निकालना भी जरूरी है, जिसमें ये सेल्फ हेल्प बुक्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। एंड यूट्यूब पे आपको, आई थिंक जब आपको किसी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा करना है तो ये देखना चाहिए कि उस फील्ड में दूसरे लोगों ने ऐसा कैसे किया। तो आपको टॉपर्स के इंटरव्यूज, आई थिंक, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे अगर कुछ अच्छा करना होता है किसी फील्ड में तो मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि दूसरे लोगों ने वो कैसे किया, उनका पाथ कैसा था। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम कॉपी करें, लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन जैसी भी एक चीज होती है, आपको इंस्पायर होना है तो देखना पड़ेगा दूसरों के सक्सेस को, दूसरों की लाइफ को, बिना किसी हीन भावना के। मतलब अपने आप को छोटा नहीं मानना, अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अरे अरे अरे। तो दिस इज नॉट आई एम आस्किंग यू टू डू। देखो कि लोग कैसे कर रहे हैं, बी हैप्पी फॉर देम और उनसे सीख लो। मैं ऐसा करता हूँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट एज अ सजेशन। आमिर खान कहता है ना, लेना है तो लो वरना जाने दो। एंड न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अगर अपन को नहीं पता तो अपन अपने आप को बिल्डअप कैसे करेंगे, उसके हिसाब से अडेप्ट कैसे करेंगे। तो अडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि जो दुनिया में हो रहा है वो हमें पता हो। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना, करियर बुक्स, जो भी आपकी करिकुलम बुक्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहने चाहिए। जो लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा किया है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ऑफ कोर्स यूट्यूब पर, जैसे संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, गौर गोपाल दास जी, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु, बहुत सारे लोग हैं। एंड नॉट जस्ट पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक रिलीजन, हर तरफ से आपको विदेशों से बहुत सारे लोग मिलेंगे, कई सारे कॉमेडियन मिलेंगे। केनी सेबेस्टियन को सुनिए, उनके विटी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। काफी सारे, आप जाकिर खान को सुनिए, राइट। तो वो सब चीजें अगर हमें लाइट मूड रखेगी, और आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है तो आप कहीं भी फिट बैठोगे, है ना। वो किसी भी जगह पे काम करता है, आप कॉलेज के प्रोफेसर हो या किसी इंडस्ट्री में किसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में बैठे हो, इफ यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, पीपल विल ऑलवेज लव योर प्रेजेंस। तो सुनते रहो ऐसे लोगों को, तभी तो आएगा। एंड और इनेट है तो बहुत अच्छी बात है। एंड हाँ, देयर इज समथिंग जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत चीजें प्रगतिशील हुई हैं, दैट इज पॉडकास्ट। आपने सुना होगा बियर बाइसेप्स के बारे में, यानी कि रणवीर अलाबादिया के बारे में, वन ऑफ द वेरी गुड पॉडकास्ट। आप सुन सकते हो जोएल ऑस्टीन को, जो एक काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो जोएल ऑस्टीन, रणवीर अलाबादिया एंड मेनी मोर पीपल आउट देयर। और जाकिर खान का भी अपना एक पॉडकास्ट चैनल है। तो ये कुछ एप्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पॉडबीन, राइट। पॉडकास्ट के आप यूट्यूब सीधा जाकर प्लेलिस्ट में अच्छे एप्स ले सकते हो। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है। मतलब खाली बैठे हो रूम में, आराम से मजे कर रहे हो और ऐसे आकाश की तरफ देख रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो लाइक इफ यू आर टू एम्प्टी, बहुत वेले हो, तो एक माइक्रोफोन लो एंड मतलब ईयरफोन लो एंड जस्ट लिसन टू गुड पीपल। तो श्रवण कहते हैं कि सुश्रवण, यानी कि जब आप अच्छी चीजें सुनते हैं तो अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा कर पाते हैं। तो इसलिए अच्छा सुनते रहना चाहिए। तो दिस इज द थिंग। ये आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी किताबों में लिख सकते हो ताकि भूलो ना इसको। आई विल वेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप कॉलेज में होते हो ना, ये जनरल चीजें, मतलब इस पे ना आपको शायद कोई अलग से बोलेगा नहीं, हो सकता है कुछ कॉलेजेस में कोर्सेज हो, लेकिन फिर भी खुद को तैयार रखना चाहिए। मैंने हमेशा रखा है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो हमेशा अपने एप्टीट्यूड को बहुत स्ट्रांग रखो, खासकर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को। मैं आपसे कहूँ कि 1/4 मतलब 25%। अगर आपसे कहता हूँ 10 को 1% से बढ़ा दो तो कितना हो जाता है? 11%। छोटी छोटी चीज है, बहुत क्विक होनी चाहिए, खासकर परसेंटेज का नॉलेज। अगर इंडिया में 10 लाख बच्चे हर साल कोई एक पेपर देते हैं और उसमें से अगर 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो कितना परसेंट है?
ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना? मतलब आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दिस इज द पॉइंट। फिर अभी अपन ने जब एप्टीट्यूड के लिए अपने आप को तैयार किया, एप्टीट्यूड मतलब बेसिक 9th-10th का मैथ्स होता है। क्या होता है? जो चीज तुम भी जानते हो, ये जिसको यूज नहीं करोगे वो चीज सड़ जाएगी, है ना? इट विल डीके एनीथिंग विच इज अनयूज। तो अपने दिमाग को यूज करते रहना, अपने दिमाग को चैलेंज करते रहना है। कंफर्ट जोन में जितना यंग है ना, तुम देखना अभी जितनी मेहनत कर ली है ना, कर ली है। एक एज ऐसी आती है, मतलब गॉड फॉरबिड, बट ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है कि ना लाइफ में आप एक पीस चाहते हो, एक कंफर्ट चाहते हो कि ठीक है अपन बैठे एक जगह पे और ऐसा थोड़ा कंफर्ट जोन में रहे। तो वो आए उसके पहले अब खूब स्ट्रगल कर लो, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आप देखोगे ना ये वाली स्टेज डिले हो जाएगी। मतलब अगर आप 30-35 में वो स्टेज में पहुंचने वाले हो, तो 30-35 में ना होके 45 तक चलोगे, है ना? तो आप देखोगे आपका एक्टिविटी स्पैन बढ़ जाएगा जितना मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहोगे। और आजीवन हो तो फिर माशाअल्लाह, क्या बात है ना? एंड दिस इज द थिंग। तो अपने आप को मेंटली एक्टिव रखो। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा है कि इंटरव्यू स्किल्स तो देखते रहने चाहिए। यूपीएससी के जो लोग हैं, मतलब जिन्होंने अच्छे इंटरव्यूज दिए हैं, जैसे आई थिंक अक्षत सिंह इज वन ऑफ द पर्संस, एंड बहुत सारे आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, टेक्निकल भी और एचआर भी, कि किस तरह, जैसे अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो जैसे मैं आपको अपने साथ बताता हूँ। व्हेन आई वेंट टू आईआईटी फॉर माय इंटरव्यू, मुझसे ना उन्होंने पूछा कि खुशवंत तुमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब फ्लाइट में था, मतलब जब मैं बीआईटी से आईआईटी जा रहा था अपना इंटरव्यू देने के लिए, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पसंद भी हैं, जैसे सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग काफी पसंद है, थर्मोडायनेमिक्स मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये 2-3 सब्जेक्ट्स थे जिनको अच्छे से पढ़ा हुआ था, एंड माय बेस वाज वेरी स्ट्रांग। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स पसंद है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि सर हीट गिवन टू अ सिस्टम चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। बोले अच्छा इसको चलो लिख के बताओ, एक पेपर है। मैंने पेपर पे लिख के बताया। तो उन्होंने बोला ये तुमने यहाँ पे डेल्टा क्यों लिखा है, जानते हो डेल्टा का क्या मतलब होता है? क्या डेल्टा यू लिखना ठीक है? देन आई वाज परप्लेक्स। तो मैंने उनको बोला कि सर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं स्टेट फंक्शन और एक होते हैं पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, और पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो जो हीट है वो एक पाथ फंक्शन है, इस वजह से उसके आगे डेल्टा लगाना कोई समझदारी वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं। तो अब जैसे ही वो प्रोफेसर्स के ग्रुप ने ये देखा ना कि मैं बेसिक से चीजों को अप्रोच कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आगे पार्ट पीछे सपाट, ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ सीख रहा हूं तो पीछे भूल रहा हूँ, ये नहीं है। जड़ों से जुड़ा हुआ हूं कि कैसे चीजों को कनेक्ट करना है फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल हीरो। तो जब ये कोई भी इंसान आप में देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसकी कंपनी में भी जब आप आके काम करोगे या उनके साथ उनके रिसर्च ग्रुप में आके काम करोगे, तो आप में एक कनेक्टिविटी का स्किल है। फिर कंपनी में तो कोई भी कंपनी या कोई भी रिसर्च का कोई भी प्रोफेसर आपको तो अपने हिसाब से ट्रेन करेगा ही, लेकिन अभी आप में क्या ये स्किल मौजूद है? क्या आप अपने बेसिक्स में क्लियर हो? ये झलक देता है सामने वाले को कि आप आने वाले समय में जब उसके साथ एसोसिएट होगे तो कैसे काम करोगे, है ना? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है मैंने सीखा अपनी जर्नी में। अगला पॉइंट कि बेसिक्स में अपनी फाउंडेशन को एकदम स्ट्रांग रखो, चाहे वो 10वीं 11वीं के साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो या फिर आपकी इंजीनियरिंग के दौरान पढ़े जाने वाले सिंपल सी बातें जो किसी को भी आपसे मिलते ही एक अच्छा उस पर प्रभाव डालती हैं। और ये नेचुरल है, मतलब प्रभाव डालने या इंप्रेशन डालने के लिए नहीं, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो अगर आप खुद सूर्य हो तो सामने वाले तक चमक अपने आप पहुंचेगी, है ना? आई होप आई एम कन्वेइंग। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? कई बच्चे ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो डिबेट करने लग जाते हैं, बट इट्स नॉट सो। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, दूसरों की बातें सुननी भी होती है और अपनी बातें बोलनी भी होती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, ये सब हमको ना करते रहना चाहिए। इंटरव्यू के एक दिन पहले ये सब करने का ना टाइम होता है, ना आपका वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। उस समय आप ये सोचते रहते हो कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा इंटरव्यू, है ना? तो उससे अच्छा है कि अभी जब समय है आपके पास उसका यूज करना चाहिए, राइट? और अब तो क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज आपके इसी तरह से ऑनलाइन मोड पर होंगे, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको सावधानियां बरतनी है, बैकग्राउंड के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में, इस पे अपन बहुत सारा नॉलेज बटोर सकते हैं। कहाँ से? आई जस्ट डिस्कस इन सम टाइम। अच्छा,
I was informed by Manish sir that your entire like a lot of you might be from the chemical engineering department. So I am here to just tell you कि आपको जब मैंने आपको कहा था ना फर्स्ट पेज पे अपने पास एक कॉपी जरूर रखो जिस भी फील्ड पे आप काम कर रहे हो, अपने सारे डेटा को लिखते जाओ, क्योंकि आज तुमको कोई चीज पता है, जब तुम कल 10 कामों में अटके हुए होगे ना वो चीज सब भूल जाओगे, कुछ भी नॉलेज लोगे तो उसको लिखते चलो, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें लिखी है कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, इस वेबसाइट ने मुझे बहुत हेल्प किया था, राइट, unitoperation.com। अनअकैडमी पर अभी आई एम सीइंग देयर आर ग्रेट लेक्चरर्स, ग्रेट टीचर्स जिनके लेक्चर्स आपको काम आएंगे। एंड डू रिमेंबर ये सब चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के नोट्स, जो वो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स को अच्छे से प्रिजर्व करो। एंड देन ऑल्सो वर्क एंड टेक हेल्प फ्रॉम दीज सोर्सेज। कोरा पर देखो टॉपर्स ने कैसे अच्छा किया है और उनके कुछ अच्छे से सीख लो, है ना, मतलब कोरा पढ़ते रहना चाहिए। आई थिंक काफी अच्छे अच्छे लोग अपने अच्छे व्यू पॉइंट्स देते हैं और यूट्यूब तो हिट चीज है ही। टॉपर्स के इंटरव्यूज जैसा मैंने कहा देखो, फेलियर्स के भी इंटरव्यूज सुनो, देखो कि वो क्या गलती कर गए, कहाँ उन्होंने ना समझी की, क्या कभी लेजीनेस नहीं करनी चाहिए थी जो की और आज पछता रहे हैं, तो उनकी गलतियों से सीख ले लेना, राइट। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और आई विल रिकमेंड एक पेन उठाओ और अपनी कॉपी में लिख लो 2-3 चीजें, है ना, यू विल बी वेरी प्राउड, योर फ्यूचर सेल्फ विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। सो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये गेट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपको अनअकैडमी पे बहुत अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स नन ऑफ इट इज एनी पेड क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट, है ना। सो इट इज जस्ट माई इनेट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, गेट को एग्जाम को जब आप क्लियर कर लेते हो तब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, और कई बार केमिकल इंजीनियर्स के लिए ना बहुत सारे ये कई बच्चों को पता नहीं होता। जस्ट गो टू यूपीएससी वेबसाइट, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो और इसमें आप सिर्फ लिखो केमिकल इंजीनियरिंग या गूगल पे टाइप करो केमिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी, आपके सामने लिंक खुलेगी। इनफैक्ट दिस इज हाउ आई पुट दिस पिक्चर हियर। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन केमिकल इंजीनियरिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके लिए कुछ अलग पेपर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं एज अ केमिकल इंजीनियर। तो उन पेपर्स को आई बिलीव जब तुम्हारे पास इतना नॉलेज है ही तो थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी करके दे देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि नहीं होगा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की, आपको पता ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो चीजें रखी है। ऑफ कोर्स ये सारे रास्ते तो खुलते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है। बार्क का अपना पेपर होता है ना, BARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसरो का आई थिंक पेपर होता था, अब वो गेट से भी लेते हैं। NPCIL है ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DRDO डिफेंस रिसर्च। तो इनके आपके लिए आपके सामने द्वार खुल जाते हैं वंस यू आर टेकिंग गेट एग्जाम, और इनमें से कईयों के अपने खुद के पेपर भी होते हैं। आई थिंक DRDO का होता रहा है इस साल, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर चेक करो, मतलब रिसर्च करके रखो एंड मेक श्योर कॉपी और पेन हो ताकि ये सब लिख सको। जब भी उनकी वेबसाइट पर जा रहे हो लिख लो उनकी डेट्स क्या हैं और अपने कैलेंडर पर सेव कर लो ताकि आपको रिमाइंडर आए। आज के समय में इतने सारे चीजें होती है, यू टेंड टू फॉरगेट, तो इसलिए रिमाइंडर सेट कर लो। ऐसा नहीं हो कि डेट निकल जाए और आप काबिल हो और पहुंच ना पाओ, दैट शुड नॉट हैपन। एंड अगेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ना बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स के उसमें ऑप्शंस होते हैं। जब आप देखोगे ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग भी एक पेपर मिलेगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज इस एग्जाम के लिए मैंने रजिस्टर किया था, बट अगेन बिकॉज ऑफ सम कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई कुडंट अपीयर फॉर दिस वन, बट आप इसके लिए अपीयर भी कर सकते हो और इस पेपर को आप क्रॉस भी कर सकते हो। इसमें कई बार ना कॉलेज में आप जैसे सब्जेक्टिव पेपर्स आंसर करते हो ना, आपको IFS के पेपर में वैसे ही सब्जेक्टिव पेपर्स आंसर करने होते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, एंड डिफरेंट अदर पैरामीटर्स। केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं, सो उसके आप पेपर्स देख सकते हो इनके वेबसाइट पर। खासकर यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको पास्ट ईयर पेपर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर देख लो कैसे देखते हैं पास्ट ईयर पेपर्स इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, राइट। और ऑफ कोर्स जब आप एक बार मास्टर्स कर लेते हो, है ना, बैचलर्स कर लेते हो, तब आपके पास काफी सारी R&D पोजीशंस खुलती हैं। फिर वो मैंने तो ये आपको बताया गेट के एग्जाम और जो दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं। R&D पोजीशंस होती हैं जैसे डू पॉइंट में, BASF में, हनीवेल, रिलायंस एक्सेट्रा, जहां पर अपन जाकर वर्क करते हैं एज एन R&D इंजीनियर, जो कंपनी के सर्विस और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में उनकी हेल्प करते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। और केमिकल इंजीनियरिंग के बाद ऑफ कोर्स ये आपने काफी लोगों से सुना भी होगा, आपके दोस्तों से, आपके प्रोफेसर से एक्सेट्रा, कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आपने एक बार अपना बैचलर्स कर लिया तो आप मास्टर्स और PhD को परस्यू कर सकते हो। जैसा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं अक्रॉस द कंट्री, जैसे
ऑफ दी शीर्ष, मतलब सबसे ऊंचा कॉलेज थी ISC बैंगलोर, काफी सारे IITs हैं, ICT मुंबई है ना, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, NIT, LIT नागपुर, एंड देयर आर अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल्सो, जो कई बार, जैसे यहाँ पर मैंने ICT लिखा है और LIT लिखा है, ये पूरी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड जगहें हैं. ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन, आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हो. आई हैव a lot of friends जो दूसरी जगहों, मतलब या तो वो US में है, जैसे I have one friend who is he did his masters from Imperial College London और अब वो वहाँ से PhD कर रहा है. I have a friend who is doing who did masters with me in IIT Gandhinagar and now he is pursuing his PhD in South Korea, so on and so forth. मतलब आप कंट्री का नाम ले लो एंड विद गॉड ग्रेस आई हैव सम फ्रेंड समवेयर हु इज वर्किंग इन सम गुड प्लेस. तो अगर आपको कभी कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी से भी, तो देयर आर ऑलवेज देयर पीपल आउट देयर टू हेल्प यू आउट. तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर. आई जस्ट शेयर माय नंबर इन अ व्हाइल. जो पाथवे है मास्टर्स या PhD का, उसके बारे में कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं यहाँ पे. So what you can do is कि ये मैंने अपने सीनियर से सीखा था. अगेन I really respect her. उनका नाम है दामिनी अग्रवाल. She was the best student awardee, like 2 years batch above me, and she did her masters from JHU, Johns Hopkins University से, which is biomed की best university across the world. वहां से उन्होंने अपना मास्टर्स किया था. Now she's working there in something amazing. वो ना जो लोगों के हाथ पैर नहीं होते हैं उनके लिए कैसे, जिनके एम्प्यूटेड लेग्स होते हैं उनके लिए कैसे बायोमेडिकल एड डेवलप की जा सके, उस पर काम कर रही हैं. सो फिनोमिनल वर्क. आई हैड लर्नड ऑल ऑफ दिस, अ लॉट ऑफ दिस फ्रॉम हर. तो उन्होंने बताया था कि खुशवंत, जब भी आपको किसी प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है फॉर द PhD रिक्वेस्ट या मास्टर्स में आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस सब्जेक्ट पे है, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखो कि जैसे CRE को पढ़ने में बहुत मजा आया है ना, तो देखो कि CRE से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोजेक्ट है. अगर आपको हीट एंड मास ट्रांसफर में मजा आया तो वहां देखो. एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो देखो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन से सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगे एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी फील्ड इन पर्टिकुलर. फिर आप देखो, आपका इंट्यूशन भी होता है कई बार कि यार ये चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगेगी एंड सो ऑन. ये चेक करो कि करंट सिनेरियो कैसा है उस फील्ड में, अभी क्या लूप होल्स हैं, कहाँ पे रिसर्च नहीं हुई है, उसके बारे में चेक करो. कैसे करोगे? मैंने आपको नीचे देखो यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं, गूगल स्कॉलर्स, साइंस डायरेक्ट, एकेडेमिया. यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री पेपर्स मिल जाएंगे. कई बार रिसर्च पेपर पढ़ने से बच्चे डरते हैं. डरना नहीं है, आप 1-2 पेपर 4 पेपर पढ़ोगे ना तो आइडिया हो जाएगा. सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, की पॉइंट्स पढ़ने होते हैं. गूगल पे आप जाओ, बस लिखो हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर, उस पर भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे. वो लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ने से पहले ना उसका आप रिजल्ट पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो, तो एक मोटा मोटी सा आइडिया हो जाएगा व्हाट एवर हैज बीन डन इन दैट फील्ड और वो आदमी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब द ऑथर ऑफ दैट पेपर. तो थोड़े रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया. फिर आप नोट्स ले लो ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी सारी चीजें होंगी. आप 10 पेपर पढ़ोगे सब तो याद नहीं रहेगा. मैंने अगेन कहा नोट्स लेना इज रामबाण इलाज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. नोट्स लो और फिर जो वो प्रोफेसर जो काम कर रहा है उस फील्ड में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोफेसर्स काम कर रहे होंगे. आप उन प्रोफेसर्स को मेल लिख सकते हैं. मेल भी डायरेक्टली मत लिख देना, प्रोफेसर्स कई बार हर्ट हो जाते हैं अगर आप कुछ भी मेल लिखोगे तो, या एक जनरल मेल लिख दोगे तो, क्योंकि उनका टाइम बहुत प्रेशियस है ना. वो बहुत सारे काम कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, राइट. उनका अपना फैमिली टाइम भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं. तो आप किसी को भी जनरल मेल मत लिखो, देखो कि प्रोफेसर्स को कैसे मेल लिखा जाता है और फॉर्मेट में मेल लिखो. मैं ये बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से. मैंने एक बार एक प्रोफेसर को एक मेल लिखा था विच वाज अ लिटिल जनरल, मतलब एक ही मेल को कॉपी पेस्ट करके, एंड उन प्रोफेसर ने मुझे काफी अच्छे से समझाया था कि खुशवंत दिस इज नॉट अ वे ऑफ डूइंग इट, आपको देखो ये तरीका होता है. एंड देन आई लर्न कि अच्छा ऐसा होता है. तो ही वाज वेरी हम्बल इनफ. तो नॉट एवरीवन विल डू दैट. कई लोग ऑफेंड होकर हो सकता है आपको रिप्लाई ना करें, तो दैट माइट मेक यू मिस द अपॉर्चुनिटी. तो बेहतर है कि सोच समझ के कदम उठाओ, है ना. एंड फिर एक बार जब हो जाती है बात तो वो आपको गाइड करते जाएंगे कि हो सकता है आपको बोले कि आप PPT बना के लाए, ये 4 पेपर पढ़ो, इस पे अपना इन्फ्लुएंस बताओ. फिर आप उनसे टच में रह सकते हैं उन प्रोफेसर से, या तो ओवर कॉल एंड ओवर ईमेल्स. तो फिर वो प्रोफेसर को आइडिया हो जाएगा कि आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड या आप सिर्फ ऐसा बस
हाँ सर मैं करना चाहता हूँ के नाम पे कर रहे हो, है ना, वो प्रोफेसर समझ जाएगा आपकी मेहनत से। तो दिस इज द की। तो आप ये भी पेज चाहो तो अपने पास एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ब्रीफ में जितना ब्रीफ हो सके सरल शब्दों में समझाने की आपको कोशिश की है कि कैसे अप्रोच करना होता है। अच्छा ये भी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था आई गॉट माई एडमिट्स, तो वो इसी तरह से मिले थे। मैं काफी कॉन्वर्जेशन में था अलग अलग प्रोफेसर से एंड आई हैड गॉट टू वर्क विद देम। ओके, फिर जैसा कि यहाँ लिखा है मैंने, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स टू नाल्को, है ना, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इफको हो गया, फर्टिलाइजर्स मतलब IOCL हो गया, HPCL हो गया। ऑफ कोर्स ये सारे रास्ते आपके लिए खुलते हैं जब आप गेट देते हैं। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप एक गेट के एस्पिरेंट हो, पढ़ना शुरू कर चुके हो या पढ़ रहे हो, तो गेट के एग्जाम के लिए तो अप्लाई करना ही होता है। इनमें से कई सारे मांगते हैं कि आप गेट के पहले इनमें अप्लाई करो और कई सारे मांगते हैं कि आप गेट के बाद इनमें अप्लाई करो। तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना। थोड़ा आई थिंक दिसंबर या जनवरी मंथ से इनके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इनकी वेबसाइट पे जाके कुछ कुछ दिनों में चेक करते रहा करो और रिमाइंडर में डाल देना। मतलब मैं यही करता हूँ, आई पुट इट इन माई गूगल रिमाइंडर्स, तो फिर वो मुझे रिमाइंड कराता है क्योंकि अपन अपने 10 काम में बिजी है जैसे मैंने कहा। तो यू माइट टेक अ स्क्रीनशॉट। इन कंपनीज को अपनी डायरी में लिखना याद से, या तो अभी या लेटर। यू माइट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर नाउ। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अपन को ना अपने आप को काबिल बनाना है। तो देखो अपन किस फील्ड में, अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आने वाला भविष्य बहुत कुछ सिमुलेशन पर बेस्ड है। तो आई हैव ऑल्सो फ्रेंड्स जो इस वक्त केमिकल इंडस्ट्री में एज केमिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और वो हमेशा बताते हैं कि एस्पेन इज वन ऑफ द लैंग्वेज विच इज वेरी मच, या ऐसा कह लो सॉफ्टवेयर विच इज वेरी मच यूज्ड इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। या तो ये या इसके भाई बहन, मतलब इससे काफी मिलते जुलते सॉफ्टवेयर। सो यू विल फाइंड देम इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ पे प्रोसेस को, मशीन्स को डिजाइन करने के लिए, कुछ नई प्रोसेस पे वर्क करने के लिए एस्पेन इज वन ऑफ द ग्रेट सॉफ्टवेयर। तो इसको हम कॉलेज में सीख सकते हैं क्या? देखो क्या आपके कॉलेज ऐसा कोई रिसोर्स प्रोवाइड करता है, और नहीं तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, सोर्सेज मिल जाएंगे। एंड किसी फ्रेंड के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ आपको इस पे काम करना चाहिए इफ देयर आर सम पीपल अराउंड यू, है ना। हो सकता है इसी बहाने उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले टू वर्क ऑन देयर नॉलेज, योर फ्रेंड्स एंड पीपल एसोसिएटेड। कॉमसॉल एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स बहुत अच्छे देता है, खासकर आप अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे काम कर रहे हैं कि कैसे हीट का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना, पाइप के अंदर अगर आप उससे कोई फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं, फ्लूइडाइज्ड कैथेटिक क्रैकर्स के अंदर कैसे, डिस्टिलेशन चैम्बर्स के अंदर किस किस जोन में कितना टेम्परेचर है एक्सेट्रा, ये सब चीजों को विजुअलाइज करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैटलैब, जैसे मैंने बताया, मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट था मास्टर्स का, वो पूरा का पूरा मैटलैब पर बेस्ड था। अगेन एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर, वेरी इजी टू यूज। पाइथन आजकल काफी यूज हो रहा है। तो इनको हमको सीखते रहना। जब तुम बैचलर्स कर रहे हो, अगर बैचलर्स में नहीं कर पाए तो मास्टर्स कर रहे हो, लेकिन जितना जल्दी सीखोगे उतना एडवांटेज उसके मिलेंगे। अच्छा, कई सारे मुझसे मेरे दोस्त भी और जूनियर्स भी पूछते रहते हैं कई बार कि खुशवंत, हाउ डिड यू गेट द इंटर्नशिप इन सिंगापुर, और आपने कैसे वो स्कॉलरशिप पाई? तो देखो मैं कहता हूँ कि आपको ना हमेशा अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में रिच होना चाहिए। जितने प्रोफेशनल लोगों से बात कर सकते हो करो, है ना। और वो सबसे इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब टाइम का। उनके आर्टिकल्स पढ़ो कोरा पर एक्सेट्रा। और ये एक प्रोसेस है कि पहले देखो, अलग अलग तरह की इंटर्नशिप्स खोजते रहो। आई थिंक एक इंटर्नशिप्स एंड स्कॉलरशिप्स करके एक वेबसाइट ही है जिसपे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो अपन को खुद उसको सर्च करते रहना, या कोई दोस्त, एक ग्रुप बना लो। पीयर ग्रुप बहुत अच्छी चीज होती है। 4-5 लोग जो इंटरेस्टेड हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग ऐसे टाइम काट रहे हैं कॉलेज में और कौन लोग लिटरली इंटरेस्टेड हैं, अपने करियर के प्रति ओरिएंटेड हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो, है ना। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तुम कॉलेज में होते हो, बहुत सारे लोग मिलते हैं आसपास, कुछ काफी टॉक्सिक होंगे, नेगेटिविटी उगलेंगे, और कई सारे लोग काफी, अच्छा उनकी भी गलती नहीं है, मतलब उनको भगवान ने वैसा ही माहौल दिया है वैसा ही बड़ा होने के लिए, तो कोई बात नहीं, उनका एक सही समय आएगा जिसपे उनको एक अच्छा थॉट प्रोसेस मिल जाएगा। कई सारे आपको अच्छे प्योर माइंडेड लोग मिलेंगे, है ना, मतलब मस्ती मजाक करेंगे लेकिन उनको पता है उनको क्या करना है एंड उस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो, उनसे कुछ कुछ गाइडेंस लेते रहो, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट टुवर्ड्स द एंड। ये सारी इंटर्नशिप से आप लिख सकते हो अपने पास, है ना। एनटीयू इंडिया कनेक्ट है, दाद है, राइट, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, यानी कि IAS की एक अच्छी समर इंटर्नशिप होती है, आप लिख सकते हो इनके नाम अपने पास। आप अपने कॉलेज की छुट्टियों में
IISc, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, यहाँ का मैंने कहा ना प्रोफेसर्स से बात करो, देखो उनको ईमेल कैसे लिखते हैं, उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और उस पर जाके काम करो उनके साथ, तो एक्सपीरियंस बटोरो। मैंने कहा ना द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द बेटर यू विल बिकम। तो आई रियली प्रे कि आप में से बहुत सारे लोग अपने जूनियर्स को इसी तरह से कुछ गाइडेंस दे सको। तो वो तभी होगा ना जब आप उसका खुद एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो वो करते रहना चाहिए, मतलब भले एक्सपीरियंस ना भी मिले तो मेहनत तो की, तो वो इन्फॉर्मेशन जो रहेगी उसको आप शेयर कर सकते हो। देन अगेन ये इंडस्ट्रीज हैं, है ना, इंडिया में भी हैं और सदर्न एशिया में भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अपने ऑफकोर्स दोस्तों से कनेक्टेड रहो जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली में जान पहचान के कोई भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, तो उनसे कनेक्टेड रहो, उनको बोलो कि आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपने बल पे जाओ, है ना, ऑफकोर्स अप्रोच लगा के नहीं, बट उनसे कनेक्टेड रहोगे तो ज्ञान मिलता रहेगा। फैकल्टीज से कनेक्टेड रहो, समटाइम्स फैकल्टीज हैव ग्रेट कॉन्टैक्ट्स विद अदर प्रोफेसर्स इन कॉलेज, और हो सकता है वो भी आपकी हेल्प कर सके टू स्पॉट कि कहाँ पर अच्छा काम चल रहा है, राइट। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आई हैड डन माय जो बैचलर्स का प्रोजेक्ट होता है ना, जिसको अपन इंटर्नशिप कहते हैं, फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। इट वाज अ 1 month प्रोजेक्ट एंड इट वाज इन भिलाई। मैं सुबह जाता था ट्रेन से ट्रैवल करके और शाम में 8-9 बजे के आसपास वापस आता था। आई यूज्ड टू गेट डेड टायर्ड, बहुत थक जाता था, बिकॉज इंडस्ट्री, खासकर स्टील इंडस्ट्री में ना, एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में कई बार 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो मुझे वहां पे बार बार सबसे लिफ्ट लेनी पड़ती थी, क्योंकि आप अंदर अपनी गाड़ियां नहीं ले जा सकते। वहां जो लोग हैं उन्हीं से आपको सर प्लीज नेक्स्ट जगह ले जाएंगे क्या, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। तो इस तरह से लाइक अ लॉट ऑफ स्टोरीज है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग, मैंने आपको देखो नोट लिखा है, इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, हम में से बहुत सारे लोग ना, अगर हमारा दिमाग ही ऐसा बना हुआ है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि ना, हम अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं या हमारी लेजीनेस है, तो हम कहने लगते हैं यार रिसोर्सेज नहीं है, यार मेरे पास तो ऐसा नहीं है। मुझे मैं ना आपको बता दूं, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ रेडियो जॉकी जब मैं कॉलेज में था। तो एक नमूना है। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, केम छू सारू, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप इस वक्त सुन रहे हैं वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। तो शॉर्ट ग्लिम्स, आई वर्कड एज अ रेडियो जॉकी। तो मैं एक रेडियो जॉकी की तरह एक बार इंटरव्यू लेने गया था अपने एक सीनियर का। उनका नाम है जितिन कोहली, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव मेट। मेरे सीनियर टीम्स में से देयर आर फ्यू सिलेक्टेड पीपल, उनमें से वो हैं जिनसे मैंने हमेशा इंस्पिरेशन लिया। उन्होंने मुझे एज अ रेडियो जॉकी, जब मैं था तो मैंने इंटरव्यू लिया था, वो अभी ना ग्रेजुएट हो रहे थे, और उनके ग्रेजुएशन हॉल के बाहर जाके मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि खुशवंत, एक बात याद रखना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइफ में भगवान आपको हर तरह के रिसोर्सेज दे दे, हो सकता है हो भी, लेकिन जब भी आपके पास जो भी रिसोर्स है, देखो कि आप उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हो, है ना। अगर आप अभी अपने बेस्ट रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहे हो, तो जब आने वाले समय में आपको और रिसोर्सेज डेस्टिनी के जरिए, आपकी मेहनत के जरिए मिलेंगे, आप उसका भी यूज कर पाओगे। काबिल आपको बनना है ना। रिसोर्सेज तो आएंगे जाएंगे लाइफ में, ये देखो कि हम कितना बेस्ट यूज कर रहे हैं उन चीजों का, उस टेक्नोलॉजी का जो आज मेरे साथ है। क्या आज मेरे को लाइफ दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंस्टाग्राम पे पोस्ट को ऊपर घुमाने में, या फेसबुक का सिर्फ ऐसे बेमतलब का पोस्ट को ऊपर घुमाने में, क्या मेरा एक बहुत बड़ा समय जा रहा है? तो ये टेक्नोलॉजी का एक मिसयूज है। मतलब जहां पे मैं अपने स्किल बिल्डिंग पे काम कर सकता हूँ, वहां मैं अगर दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ऐसे ही गंवा रहा हूँ, देन दिस इज अ पॉइंट, एन अलार्मिंग पॉइंट, जहां मुझे सोचना है कि क्या मैं अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो क्या कर सकता हूं। सो दिस इज इट, है ना। और जैसा कि दूसरे रिसोर्सेज हैं, आपको आईआईटी के काफी सारे प्रोफेसर्स के अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इस पर NPTEL नाम है ना। रिसोर्स है गवर्नमेंट का, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। अकेडमी एक अच्छा ऐप है जिसपे आप काफी सारे रिसर्च पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो। एडेक्स है ना। यूडेमी के बारे में आपने सुना होगा, सॉरी, खान अकेडमी, अन अकेडमी, इडेक्स, इन सबको आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो इनसे काफी सारी चीजें। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। खान अकेडमी पे आपको बहुत सारे बेसिक रिसोर्सेज मिलेंगे। मुझे याद है मेरे कॉलेज के समय में मैंने खान अकेडमी के बहुत सारे लेक्चर्स से बहुत हेल्प ली है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बेसिक्स। मतलब अब कई बार होगा ना कि आपको छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, तो वहां से हेल्प मिल जाती है। लास्ट देखो, ऐसा होगा, हो सकता है तुमको बिल्कुल केमिकल इंजीनियर नहीं बनना,
लगेगा वो तो वो पाथ है जो सब कर रहे हैं, मुझे नहीं आया मजा, तो अब मैं क्या करूं। तो देखो, हमेशा लाइफ आपको दो पाथ देगी, एक जिसपे सब चलते हैं, और दूसरा पाथ विच इज लेस ट्रॉडेड, जिसपे बहुत कम लोग चलते हैं। तो हमारे हाथ में होता है कि हम कौन सा डिसीजन लें, थोड़ा सा सतर्कता के साथ, बट आप अपना डिसीजन खुद लेते हो। अभी जैसे आई एज अ पर्सन, आई एम मेरा अपना खुद का भी बिजनेस है ना, अपना खुद का भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एंड आई टीच समवेयर एल्स आल्सो एज अ फ्रीलांसर। तो मुझे ऐसा लगता है ये बैलेंस करके चलना चाहिए कि तुम कहीं और भी एक्सपीरियंस लो, वहां से भी काम लो, और अगर वो परमिट करते हैं, मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में है, तो ऑफिशियली आपको एक खुद के भी बिजनेस पर काम करना चाहिए। आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड, है ना, बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उसमें वो बताते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अलग अलग मीनिंग हो सकती है। एक मीनिंग ये है कि आप किसी जगह काम करते हुए आने वाले समय में उस काम से कुछ एक अच्छा बिजनेस सेटअप खोल सकते हो, उस पर घर पे काम करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उससे आपको उसी समय पैसे आना शुरू हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या अपन कुछ कर सकते हैं, उसका प्लान क्या दूसरे लोगों को लेवरेज कर सकते हैं, या अपने घर के किसी मेंबर के साथ उनको हेल्प करके वो चीज करा सकते हैं, इस पे वर्क करते रहना चाहिए। ठीक है, तो एक पार्ट ऑफ अ यूट्यूबर, जैसे अभी मैं यूट्यूबर हूँ, और आई एम सो हैप्पी टू लेट यू ऑल नो कि बहुत जल्द मेरे 50,000 व्यूज पूरे हो रहे हैं मेरे चैनल पर। एंड लाइक चैनल का नाम है खुशवंत फतनानी फिजिक्स IIT-JEE नीट। तो आपको पहले चैनल एस्टैब्लिश करना होता है, स्टोरी बिल्डिंग करनी होती है, आप कैसे उस पर काम करेंगे, ऑडियंस को एंगेज करना होता है, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, साउंड इफेक्ट, और अपनी गलतियों से सीखने का एक सफर होता है ना। यू ऑल्सो डोंट नो कि आप कब आपको यूट्यूब से पैसे आएंगे एक्सेट्रा, लेकिन स्टिल वर्क करते रहना और आगे बढ़ना इज अ की। तो दिस इज अबाउट इट। और यहाँ पे एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा ना, अलग अलग एड्स के अंदर देर इज समबडी हु इज स्पीकिंग, लेकिन जरूरी नहीं है वो उनकी आवाज हो, देर इज समबडी हु इज वर्किंग एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आपने शिनचैन, डोरेमोन, इस तरह के कार्टून्स देखे होंगे, कोई है जो उनको आवाज दे रहा है, नॉडी है ना, कोई है जो उनको आवाज दे रहा है, सो दे आर कॉल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो आई ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, YouTuber, of course JEE और NEET के लिए I'm teaching students because physics is love. केमिकल इंजीनियरिंग में भी तो आप कितना सारा बर्नौलीज थ्योरम और भी काफी सारे है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ रहे होते हो। क्या है ये? अल्टीमेटली इट इज डेरिवेटिव ऑफ फिजिक्स, राइट? तो वो सब पढ़ने में मजा आता है। तो अगेन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और हमेशा हाई एम करना है, और जो कर सकते हैं लाइफ में बेस्ट, जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ पैसे की चिंता मत करो, जैसा रणछोड़ दास चांचड़ दास कहते हैं कि काबिल बनो, पैसा झक मार के पीछे आएगा, और ऐसा होता है। इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। शुरुआत में हो सकता है स्ट्रगल्स मिले, लेकिन उसके एवज में धन आएगा, और बहुत आएगा, इतना आएगा कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। बट उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने रेगुलर स्केड्यूल में काम करते हुए अपने लव पे भी काम कर रहे हैं, है ना, मतलब द थिंग्स दैट यू लव। जैसे आप अगर एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो क्या उसके बाद मैं उतनी क्षमता, उतनी शक्ति के साथ काम कर सकता हूँ उन प्रोजेक्ट्स पे जो मुझे पसंद है। So this is the thing, right? So last thing कि अभी ना, जैसे आप कभी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और आप दुखी हो गए हो, मैं क्या करूं, गिव अप करने की इच्छा हो रही है, तो अपने आप को याद दिलाना कि किसी भी फल के पेड़ पे, है ना, द लास्ट थिंग टू ग्रो इज द फ्रूट, द फल इटसेल्फ। तो दिस इज द थिंग कि एंड में हमेशा रिजल्ट मिलता है। आप सोचोगे आज मिल जाए, असंभव है ना। अलग अलग तरह के कर्म है, आप आग में हाथ डालोगे तो अभी जलेगा, है ना, लेकिन अगर बीज आज बोगे तो फल कल मिलेगा। ये विजडम डेवलप अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो समय समय पर करते रहना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर टाइम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आई एम ऑल देयर। थैंक यू। If there is anyone जो कोई सवाल पूछना चाहता है, so please shoot. Manish sir, you might want to take the initiative in case there is anyone. Yes. Yeah. Khuswan, actually they are saying for your contact number. Sure. I'll write it here on my screen. 1 minute. So here is my number. आप लोग लिख सकते हैं अपने पास। My contact number, मैंने सोचा था I'll put it in the slide, but now that you have asked, I'll just write it here. आप लोग note down कर सकते हैं guys. It is
7974355374. एक और नंबर है 9943130691. तो यू माइट कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज नंबर्स. अगर मैं किसी क्लास में हूँ या किसी रिकॉर्डिंग में हूँ तो मैं आपसे फ्री होकर डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा. तो आप मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हैं. ये दोनों नंबर्स पे आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई व्हाट्सएप. तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो एंड देन वी कैन डेफिनेटली टॉक व्हेनेवर लाइक वी बोथ आर फ्री एंड एनीवन हु इज प्लानिंग टू कॉल एंड टॉक. अभी आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है किसी इंटरव्यू के बारे में या किसी भी और बात के बारे में, जस्ट प्लीज फील फ्री. आप पूछ लो. मतलब आई फील जब अपॉर्चुनिटी होती है तो एक्सप्लॉइट इट, उसका यूज करो. तो इफ देयर इज एनीवन हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग जस्ट लेट मी नो. Okay, if there is anyone have any questions, just let us know. Otherwise, we'll go for the end of the session. Okay, then thank you, Kuswan, for coming for this webinar. Same and, here. And for motivating us and with your different points. And thank you. I would like to thank you on the behalf of the Parole University and on the behalf of the Department of Chemical Engineering also. Thank you very much. Thank you very much, Manish sir, and for all the patience and listening and for organizing this seminar. I'm really blessed to be a part of this session. Thank you, Manish sir. Okay, then students, you can leave now. We'll end the session. Okay. Manish, I can go and disconnect the meeting, right? Yes. Okay. All right.